Hello dear friends, welcome to my channel. Now the next topic is ether. Again we are taking the IUPAC nomenclature. So first topic is ether. The prefix for ether is alkoxy. जब भी इससे बड़ा ग्रुप अगर प्रेजेंट हो देन हम सिर्फ एल्कोक्सी, जैसे मिथाइल के लिए मिथॉक्सी, इथाइल के लिए इथॉक्सी, ये हम यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स. फॉर द सफिक्स वी कैन यूज एल्कोक्सी एल्केन, यानी एल्केन चेन सेम रहेगी, इसमें भी एल्कोक्सी ही आगे आएगा. दैट मीन्स ओवरऑल हम कह सकते हैं लाइक हेलोजन, ये भी हमेशा एज ए प्रीफिक्स फॉर्म में ही आता है. सबसे पहले इसका सिंबल क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ROR, यानी दो एल्काइल ग्रुप या दो कार्बन के बीच में जब ऑक्सीजन अटैच हो जाए देन उस चेन को हम कहेंगे ईथर, या फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा दैट विल बी ईथर. नाउ सबसे सिंपलेस्ट अगर हम लिखेंगे CH3O CH3, अगर हम एक भी साइड H अटैच कर देते हैं डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ देन इट विल फॉर्म अल्कोहल, बट इन दिस केस देयर मस्ट बी अ कार्बन on both the sides. So the name of this compound, how can we write the name? It is alkoxy alkane. एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो कि ईथर है. इसमें एल्कोक्सी फॉर्म में कौन होगा, एल्केन फॉर्म में क्या होगा, ये हमें ध्यान रखना है. जो लॉन्गेस्ट ग्रुप है यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसको एल्केन फॉर्म में लिखना है. एल्कोक्सी फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ जो स्मॉलर ग्रुप होगा. इस केस में जो बड़ा ग्रुप है दोनों केस में मिथाइल ही है, तो किसी भी एक को हम बोल सकते हैं लार्जर ग्रुप है इसमें अटैच, और बाकी ऑक्सीजन के साथ हम दूसरे ग्रुप को यानी स्मॉलर ग्रुप को कंसीडर करेंगे. तो OCH3 मींस ये हमारे पास हो गया मिथाइल से बना मिथॉक्सी. CH3 मिथाइल है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ते ही वो बन जाएगा मिथॉक्सी, और इसको पेरेंट नेम जैसे एल्केन है तो सेम वैसे ही एज इट इज लिखना है. फॉर वन कार्बन वी कैन राइट मीथेन. So we can write this name as methoxymethane. Okay. The common name of this compound is dimethyl ether. Next is CH3O CH2 CH3. In this case, the longest chain is on the right side of oxygen. It is of 2 carbon. This is number 1, number 2. For 2 carbon atoms, we can write ethane. Now, in first position, there is again CH3O. So this will be written as methoxy. So smaller group will be written with oxy. So it will be called as methoxy. Then parent carbon name ethane. अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए then ethene. Okay. Next CH3 CH2O CH2 CH3. Now in this case on both side of oxygen there is same group. It is ethyl group on both the sides, so we can write it as ethoxy ethane. The name will be ethoxy ethane. Okay. Next we have given some questions here. So how can we write the IUPAC name of this compound? Number first, there is only one functional group present in this whole chain. It is OCH3, means ether is present. So the name will be written as alkoxy. So OCH3 will be methoxy. अब the position of methoxy, we have to find the position, nearest position from which end we can take it from both the sides. Because OCH3 is at third position from both the sides. Left से भी third position में है या right से करते तो भी हमारे पास third position में ही methoxy group present है. So in this case we can say the name will be in position 3. It is methoxy. So 3 methoxy, and the longest carbon chain 5 carbon pent single bond ane. Okay. Next one, in case of OCH3 and Cl there are 2 functional groups in the same carbon chain, so we have to check the order of preference. In case of methoxy group or ether group or halogen group, the ether group has more preference over halogen. So we will see OCH3 from which carbon end it is nearer. It is at nearer position, we will check. So it is 1 2 from the left end methoxy की position है 2, from the right end it is 3. So left end से हम नंबरिंग करेंगे. प्रेफरेंस हमने किसको दी है, किसमें, मिथॉक्सी को.
So the name will be 2-methoxy-3-chloro. Now alphabetical order, because दोनों ही एज ए ब्रांच लिखे जाते हैं, अब लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर रखना है. सो 3-chloro, C पहले आता है, then 2-methoxy, then parent carbon chain 4 carbon, it is butane, single bonded carbon. The next one CH3 or OCH3. So whenever there is some methyl group present as a branch in a carbon chain, then it will have more preference over OCH3. But we have to see there is another functional group, aldehyde. If aldehyde were not there, it would be CH3, then numbering must be done from the left hand, because we will give preference to methyl over OCH3, that means methoxy. But in this case, from out of these, among these three, the CHO group, aldehyde group, has more preference, so we will give the numbering from right side. So 1, 2, 3, 4, 5. So for 5 carbon with CHO group, we can use pentanal, and 3-methoxy and methyl. Both are starting from M. 4-methyl, and there is 3-methoxy. Same words are there. MET, both are same. Alphabetical order, dictionary word हमें use करना है. METH, same. Then Y और O, O पहले आता है. Now O पहले आने के कारण हम इसमें मिथॉक्सी को नेम में पहले लिखेंगे. So we will write 3-methoxy 4-methyl, then for 5 carbon atom it is pentanal or pentane 1-ul. So I hope you will understand the namings of this group. This is ether. Now we will take the acid derivatives, next topic. Now we have next functional group, it is carboxylic acid. So the symbol for this group is CRC, double bond O, single bond H. Okay, ये बॉन्ड हमने ऑलरेडी देखा है, C डबल बॉन्ड O इन केस ऑफ कीटोन्स, दोनों साइड दोनों साइड R होते हैं या कार्बन होते हैं. इन केस ऑफ एल्डिहाइड वन साइड H होता है, लेकिन इसमें एक साइड OH है, एल्कोहल जैसा ग्रुप, एक साइड कीटोन वाला कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन जिसे हम बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O, और ये पूरा ग्रुप एक साथ अटैच होने के बाद बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड H. इसको हम COOH शॉर्ट में एक साथ लिख सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज RCOOH. नाउ द सफिक्स, अब इसकी प्रेफरेंस सबसे हाईएस्ट में से एक ग्रुप है ये जिसकी प्रेफरेंस सबसे हाईएस्ट है. सो द सफिक्स इज ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, सफिक्स इज ओइक एसिड. एंड द प्रीफिक्स हालांकि बहुत कम यूज होता है, बट कार्बोक्सी इज द प्रीफिक्स फॉर दिस ग्रुप. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? सो फॉर फर्स्ट मेंबर देयर मस्ट बी 1 कार्बन, सबसे मिनिमम से हम लेके चलते हैं COOH, या तो हम ऐसा लिख सकते हैं. अब कार्बन के पास यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी है, सो फॉर फर्स्ट फ्री वैलेंसी वी कैन राइट H, ताकि ये एक कार्बन वाला हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा. फॉर 1 कार्बन वी कैन राइट इट इज मीथेन, मीथेन से बना हुआ एसिड है, तो मीथेनोइक एसिड, एक कार्बन का एसिड. नाउ COOH, एक CH3 अगर हम अप्लाई करते हैं, एक मिथाइल हमने अप्लाई किया, 1 2, राइट से ही नंबरिंग कर रहे हैं बिकॉज COOH प्रेफरेंस में बहुत हाई है. सो 1 2 2 के लिए हमने लिखा है इथेनोइक एसिड. सेम CH3 CH2 COOH, इसको हम बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड. कहीं पे बुक में प्रोपियोनिक एसिड भी लिखा है, दैट इज सेम. प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड आर सेम. नेक्स्ट इज CH3 CHCl. अब हम ट्राई करेंगे कुछ नेमिंग. नाउ द मोस्ट प्रिफर्ड ग्रुप इज COOH, 1 2, राइट से नंबरिंग किया है 3.
So in position 2, here is chloro. So 2 chloro. Then it is for 3 carbon atoms. It is prop. So it is propanoic acid. Next, 1, 2, 3. So in this case, in second position there is methyl group. So we can write the name as 2-methyl. Then for 3 carbon, again it is propanoic acid. Next case, numbering from the right side, 1, then position 2, then 3. Numbering should be done on the carbon atom. Next, for 3 carbon atoms, it must be again propanoic acid, but here at second position there are 2 chloro groups. So 2 क्लोरो सेम ग्रुप के लिए दोनों की पोजीशन एक साथ लिखते हैं, और 2 पोजीशन एक साथ तभी आती है जब सेम ग्रुप हो. देन डैश, देन 2 क्लोरो के लिए डाइक्लोरो. अगर अलग अलग पोजीशन में होते हैं तो 2,3, 2,4 इस तरह से हम डाइक्लोरो आगे लिखते हैं. देन फॉर 3 कार्बन अगेन प्रोपेनोइक एसिड. नाउ द नेक्स्ट, देयर इज डबल बॉन्ड. इन दैट केस 1, 2, 3, 4. Again preference wise COOH, but here is double bond ene. अब ene जो है वो प्रीफिक्स नहीं होता है, एज ए सफिक्स ही पीछे लगेगा, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो ये ब्यूट इन चेन है, एल्कीन है, ब्यूट एन ना लिखते हुए ब्यूट इन. कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? सेकंड. सो ब्यूट 2 इन, इन में से लास्ट में से ई ओमिट करेंगे, डैश 1 ओइक एसिड. तो ये है इन ओइक एसिड, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड. नेक्स्ट 1, 2, 3, 4. और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसमें पढ़ा था मिथॉक्सी ग्रुप, यानी यहाँ पे हमारे पास ईथर ग्रुप है, तो एज ए ब्रांच ऑफ मिथॉक्सी ही लिखा जाता है. तो इट इज एट थर्ड पोजीशन. सबसे पहले प्रेफरेंस हमने COOH को रखी है. सो दिस इज फॉर 4 कार्बन एटम्स, अगेन इट इज ब्यूटेनोइक एसिड, एंड इन थर्ड पोजीशन इट इज मिथॉक्सी. So we can write 3-methoxy butanoic acid. So this is about the acid. Now we will take the acid derivatives. So number 1, एसिड्स के डेरिवेटिव्स हमारे पास कैसे फॉर्म किए जाते हैं, ये हमें देखना है. सबसे पहले हमारे पास आया है डेरिवेटिव्स हम ले रहे हैं. So we can write derivatives of acid. Number 1, फर्स्ट ग्रुप हमने लिया है एस्टर्स. नंबर 2 हमारे पास है एसिड हैलाइड. नंबर 3 हमारे पास है अमाइड्स, और एसिड अमाइड्स भी हम लिखते हैं इसे, और शॉर्ट में अमाइड्स भी हम लिखते हैं. एंड नंबर 4 एसिड एनहाइड्राइड. So these are the 4 groups which are derivatives of acid, or carboxylic acid derivatives are there. So how can we form these groups? ये कैसे फॉर्म होंगे? तो हमें ध्यान रखना है, एसिड ग्रुप को बहुत ध्यान से देखना है. इट इज RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. अब जैसे जैसे इसमें कुछ एटम रिप्लेस होकर कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऐड होगा, देन वहां से हमारे पास नए ग्रुप फॉर्म होंगे. फॉर ईस्टर्स, द सिंबल फॉर ईस्टर्स इज it is RCOOR, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR. दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप में OH बॉन्ड के डिसोसिएशन से या इसके क्लीवेज होने की वजह से यहाँ से H की जगह R हमारे पास अटैच होगा. यानी जब इस हाइड्रोजन की जगह पे R यानी एल्काइल ग्रुप या कार्बन या CH3 हम बोल सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास CH3, ये कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, then it will form an ester. So ester के लिए सबसे पहला जो सिंपलेस्ट हमारे पास फॉर्म बन सकता है, अब इस साइड R यानी एटलीस्ट 1 कार्बन होना चाहिए, यहाँ पे तो H नहीं हो सकता. हमें ध्यान रखना है C डबल बॉन्ड O O और H, और यहाँ पे H, ये तो एसिड के लिए होगा. लेकिन अगर यहाँ पे CH3 हो जाए, देन इसको हम COOH कंसीडर नहीं करेंगे. COOH एसिड के लिए H का O के साथ बॉन्ड बनाना जरूरी है. तो इस केस में ये एसिड नहीं कंफ्यूज होना है, हमें इसे लिखने के लिए इसका एक ही फॉर्म होगा
OOCH3, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर्स, हम बोल सकते हैं एस्टर्स का फर्स्ट मेंबर है। सो HCOOH अगर हमारे पास था, ये हमने अभी नाम लिखा था सबसे पहले एसिड में, ये है हमारे पास एक कार्बन का एसिड, द नेम इज मीथेनोइक एसिड। लेकिन अब एस्टर्स के केस में नेमिंग में कुछ चेंज होगा। नाउ फॉर एस्टर्स इट इज RCOOR। नाउ फर्स्ट मेंबर हमने डिस्कस किया है HCOOCH3, ये तो हमने लिख दिया है, बट हमारे पास क्या सफिक्स यूज होगा इसके लिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम सफिक्स को ध्यान रखेंगे, इट इज एल्काइल एल्केनोइड। इसको एस्टर और ईथर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दीज आर सम डिफरेंट ग्रुप्स। इट इज ROR, इट इज RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O देन R। तो हमें ध्यान रखना है दोनों के लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसमें अकेला ऑक्सीजन कार्बन के बीच में कहीं प्रेजेंट है और दो कार्बन के बीच में यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O प्रेजेंट है। हमें ध्यान रखना है कि इसका नेम हम कैसे लिखेंगे। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ एल्काइल एल्केनोइड। अब सबसे पहले एल्काइल, वो कहां से हमें ढूंढना है, तो हमें ध्यान रखना है C डबल बॉन्ड O, ये एल्काइल ग्रुप बनेगा जो O के साथ अटैच होगा, और जो इस O से पहले ग्रुप अटैच होगा वो एल्केनोइड वाले में जाएगा। यहाँ दो जगह एल्काइल वर्ड या ALK वर्ड हमने यूज किया है, तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। ये वाला हमारे पास बाद वाला पोर्शन है जो C डबल O के पहले लगाओ एल्केनोइड वाला, और एल्काइल वाला O के साथ जुड़ा हुआ, ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप ध्यान रखना है। इधर वाला पार्ट राइट साइड में जो O के साथ हमने अटैच किया दैट इज एल्काइल, और C डबल O वाले कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच होंगे कार्बन वो एल्केनोइड फॉर्म करेंगे। तो अब इस फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, जो हमने नेम लिया था, इट इज मिथाइल, O के साथ अटैच वाला मिथाइल, और ये एक कार्बन वाला एसिड से बना है, तो मिथेनोइक एसिड से बना है मिथेनोइड, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मिथेनोइड। एक और हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, इट इज CH3 COOCH3। ये ज्यादा क्लियर होगा आपके लिए। यहाँ पे हमने एल्केनोइड ग्रुप में इसको लेना है जो मैंने मार्क कर दिया है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ जो अटैच है वो एल्केनोइड फॉर्म करेगा, दैट मीन्स इट विल फॉर्म इथेनोइड। देयर आर टू कार्बन एटम्स, वी कैन राइट इट विल फॉर्म एज ethanoid. Now it is methyl, so we will write it is methyl ethanoid. How can we write ethyl ethanoid? Then this is ethanoid, here it will be ethyl, that means CH2CH3, so the name will be ethyl ethanoid. So you can clearly understand it. How can we write the name of ester? It is ethyl ethanoid. ethyl यहाँ पे 3 कार्बन हो जाएं तो प्रोपेनोइड, सेम ब्यूटेनोइड, इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एसिड हैलाइड। हाउ टू फॉर्म एसिड हैलाइड, उसे भी आप ध्यान से देखेंगे। हेलोजन, यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं हम हेलोजन का, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी हेलोजन होगा जो मोस्ट कॉमन हैलाइड हमारे पास होता है, उसमें हम यूज कर लेते हैं क्लोराइड। क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन हैलाइड जो हमें इसमें देखने को ज्यादातर मिलेगा। नेक्स्ट हम इसे एसिड क्लोराइड को कैसे लिखेंगे या एसिड हैलाइड को कैसे लिखेंगे। सो हमारे पास सिंबल रहेगा RC डबल बॉन्ड OCl, यानी इस समय पे CO बॉन्ड क्लीवेज होगा, यानी ये बॉन्ड टूटेगा, OH वाला बॉन्ड सेपरेट होगा RC डबल बॉन्ड O के साथ, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के टूटने की वजह से ग्रुप बना है और वहां पे हमारे पास OH को हटा के Cl जुड़ गया। अगर ये डायरेक्ट ऐसा जुड़ जाए किसी कार्बन चेन में Cl, तो इन दैट केस इट विल बी हेलो एल्केन, यानी क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन इस फॉर्म में होगा, लेकिन इस केस में ये CO के साथ जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा है, तो ध्यान रखना है C डबल बॉन्ड O Cl, इस केस में हमारे पास इसका जो सफिक्स यूज होगा इट इज ऑयल क्लोराइड। अब मीथेन इथेन सबसे पहले सिंपलेस्ट मेंबर से स्टार्ट करते हैं, इट इज HCOCl। सो इसको हम लिखते हैं एक कार्बन, और एक ही कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मीथेन। अब मीथेन से इसमें लगना है ऑयल, तो मीथेनोइल, NE हटा के OYL, मीथेनोइल क्लोराइड।
सेम एक और देखते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड कैसे फॉर्म हुआ है। ये ऑयल क्लोराइड ग्रुप है, लेकिन 1 2 कार्बन को हमें गिनना है जो कंटिन्यूअस में होंगे विदाउट एनी जंप, उन्हें हमें काउंट करना होता है। सो इट इज इथेनॉइल क्लोराइड। ऐसे ही हम प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड और कुछ भी बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। नाउ हाउ कैन वी राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इट इज C डबल बॉन्ड OCl, ऑयल क्लोराइड ग्रुप प्रेजेंट है। देयर आर 1 2 3, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस में यही है ऑयल क्लोराइड वाला ग्रुप। 1 2 3 3 कार्बन के लिए होगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। बट here we have chloro at second position, so the name will be 2-chloro. Then 1 2 3 carbons are here, propanoyl chloride. This will be the name of the compound. Next we have next group as acid amide. So how can we write acid amide? कैसे फॉर्म होगा acid amide? तो वो हम देखेंगे। It is RCONH2. So we are taking the next group as amide. It is RC double bond ONH2. Again जैसे हमारे पास एसिड क्लोराइड में Cl आ गया था, इस केस में अमाइन ग्रुप से NH2 जो हमारे पास था वही अमोनिया का डेरिवेटिव। यहाँ से NH2 ग्रुप जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O के साथ, यानी अटैच हुआ है OH बॉन्ड के टूटने के कारण, ब्रेक होने के कारण OH बॉन्ड की जगह हमारे पास जब C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 ग्रुप जुड़े, देन इट विल बी कॉल्ड एज अमाइड। लेकिन जब हम RCH2 NH2 लिखते हैं, देन इट विल बी अमाइन, जो कि प्राइमरी अमाइन था। दिस इज अमाइन, दिस इज अमाइड, AMIDE। सो नेक्स्ट द नेम ऑफ दिस ग्रुप और द सफिक्स यूज्ड फॉर दिस ग्रुप इज अमाइड। अमाइड इज यूज्ड एज सफिक्स। अब इसके लिए सबसे सिंपलेस्ट मेंबर HCONH2। सो एक कार्बन का अमाइड है, मीथेन से बना हुआ है, मीथेनामाइड। एक कार्बन के लिए मिथ वर्ड हम यूज करते हैं, सो सेम अमाइड हमने यूज करना है। देन CH3 CONH2 एक साथ भी हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 2, देन इट विल फॉर्म इथेनामाइड। देन वी कैन राइट CH3 CH2 CONH2, so it will be propanamide. Okay, now अगर हम इसके साथ कोई और ग्रुप अटैच कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम OCH3 ग्रुप पढ़ चुके हैं, हमने हेलोजेंस पढ़ा है या OH ग्रुप हमने पढ़ा है, अगर वो इसमें अटैच हो तो कैसे लिखा जाएगा? CH3 CH OH C डबल बॉन्ड O NH2। प्रेफरेंस वाइज एसिड डेरिवेटिव हाइयर है बाकी अदर ग्रुप से, सो OH से हाइयर प्रेफरेंस में CONH2 होने के कारण हम प्रेफरेंस में CONH2 को ही कंसीडर करेंगे। फॉर 3 कार्बन एटम्स जो ज्यादा प्रिफर्ड ग्रुप है उसका हमें सफिक्स लिखना होता है, सो इट विल बी प्रोपेनामाइड, और एज ए ब्रांच लिखा जाएगा OH ग्रुप। और एल्कोहल ग्रुप या OH ग्रुप जब एज ए ब्रांच लिखा जाता है, देन द वर्ड यूज्ड फॉर प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी। So 2-hydroxy propanamide. Next CH3 CHOCH3, then CONH2. It is 1 2 3 carbon atoms are here. Again यहाँ पे methoxy group से higher preference पे CONH2 है, so again it is propanamide. In this case it is 2-methoxy. Here methoxy is present at second carbon, 2-methoxy propanamide. So this is all about amide. So the next group is acid anhydride, the fourth derivative of the same carboxylic acid. The fourth one, it is acid anhydride, जो हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है एनहाइड्राइड मीन्स क्या है। यहाँ पे एनहाइड्राइड या एनहाइड्रस वर्ड हमारे पास क्या होता है? तो एनहाइड्रस मीन्स जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो या वाटर की अब्सेंस हो या डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हो या वाटर एलिमिनेट हो जाए, तो वो एनहाइड्रस बनेगा। एक सॉल्ट हम लिखते हैं यहाँ पे जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट में से है हमारे पास .5H2O,
ये ब्लू कलर का होता है, इसको हीट किया जाए CuSO4 बनेगा कॉपर सल्फेट, देन ये हमारे पास व्हाइट कलर हो जाता है। नाउ यहाँ पे ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, दिस इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट इज एसिड एनहाइड्राइड के, सो इन केस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड के किसी सेम एसिड के दो मॉलिक्यूल्स को अगर वो आपस में वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं देन फॉर्म करते हैं एसिड एनहाइड्राइड। जैसे एक एसिड है H3 डबल बॉन्ड OH, अब माना इसके दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, सबसे सिंपलेस्ट एसिड हमने लिया है, दिस इज फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। इसमें से HOH अगर एलिमिनेट हो जाए, यानी वाटर एलिमिनेट हो जाए इसको हीट करने पर, तो यानी एसिड्स को हीट करने पर एनहाइड्राइड फॉर्म में चेंज होंगे, तो H2O एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस अब जो बचा हुआ ग्रुप है वो कुछ इस फॉर्म में H3 डबल बॉन्ड O, अब ये ऑक्सीजन जो बॉन्ड टूटा है वो सीधा कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा सिंगल बॉन्ड बनाते हुए, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट होगी, देन इस फॉर्म में ये आ जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं, ये बना है एनहाइड्राइड, तो सफिक्स में भी एनहाइड्राइड हम यूज करते हैं, ये बना है हमारे पास मिथेनोइक एसिड से, तो इसको हम बोलेंगे मिथेनोइक एनहाइड्राइड। सेम ऐसे ही एक और हम ट्राई कर सकते हैं, फॉर 2 कार्बन एटम्स, जहां पे हम 2 कार्बन का एसिड ले रहे हैं जो कि हमारे पास है इथेनोइक एसिड, इट इज CH3COOH। अब इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, ये हमारे पास हीट करने पर वाटर एलिमिनेट होगा एंड फॉर्म करेगा इस केस में CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहां से H2 एलिमिनेट हुआ है, देन अगेन कार्बन डबल बॉन्ड O CH3। यहां से देख सकते हैं इतना पार्ट फर्स्ट से हमने लिखा है और सेकंड से हमने यहां लिखा है। अब ये भी वैसा ही है, ये भी सेम है, इसमें हमने उसको बेंड करते हुए लिखा है, इसमें हमने उसको स्ट्रेट चेन में लिखा है। तो शॉर्ट में हम इस ग्रुप को कैसे लिख सकते हैं, किस फॉर्म में आ रहा है, यहां भी सेम ग्रुप आ रहा है, यहां भी सेम ग्रुप आ रहा है, बीच में एक ऑक्सीजन दोनों साइड से अटैच हो रहा है, तो इसके लिए जो सिंबल बनेगा RCO, C डबल बॉन्ड O देन होल ट्वाइस O, ऐसा हम लिख सकते हैं। या शॉर्ट में हम लिखना चाहें RCO होल ट्वाइस O, इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं। सो आई होप आपको चारों एसिड डेरिवेटिव्स समझ आए होंगे जो टॉपिक हमने लिया है आज। एंड आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।